सलाम दिल में साहिबा दिल में सलाम तेरी मेहरबानी इस ड्रामे च नहीं तुतूस कहदे जलूस जी मैं दसो अखन जी मैंने किथे ले आए हो एनू हीरा मंडी कहदे हीरा मंडी हां इतने कामे लगते कामे जमन का दीदा पास करते हैं बच्चे नहीं तो बड़ी आप आज ये ते कामे लगदे ने फिर कामे आने ते घर कामे लगदे ने पहले कामे लगदे ने ओ कुड़ी दे कामे लगदे ये कामे की ने ये कामे कराती है लोगे बच्चे तेरे लग जाएगा पता अच्छा अजी तू आई तो सारा कुछ दसांगा कामे का भी दसांगा मामे का भी दसांगा समझ गल सुन मेरी बात सुन मैं नहीं बसूं जी तुसी मेरे घर पे किथे ले आए हो तानू पता है शौक ना नचदी सा शादियां ते गलियां ते फंक्शनां ते और भी अपने घर ते मरनी है उते तेरे शौक पूरे होने सन ऐसे तेरे खर्चा जात पूरे होने ने हाय मैं मर गई सच्ची और मैं तो मां की सच्ची
ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤੜਫੀ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਪਰਸੋਂ ਜੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਰੁਚੀਏ ਤੂੰ ਤਰਸੀ ਕੈਸੀ ਹਾਏ ਹਾਂ ਕੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੂੰ ਤਰਸੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਤਰ ਪਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੌਸਮ ਇਸਦਾ ਪਿਤਾਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਰ ਤਰ ਸੀ ਆਏ ਹਾਏ 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 ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਠਾ ਬਣਾਈ ਜਰਾ ਕਹੋ ਓਏ ਨੇ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆਇਆ ਛੱਡੋ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਲੱਗਾ ਮੱਖਾ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਕਿਹਦਾ ਕੱਦ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 5 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ 5 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਜਵਾਨ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੂ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿਹਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਹਾਏ। ਚਿੱਟਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਦਿਸ਼ੋ ਚੀਸਾ ਦੂਰਾ ਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਨੀ ਇਹ ਜੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗਲੀ ਜੰਮੀ ਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੂਰਾ ਪਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਕ ਘਾਟ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਾੜਦੀ ਸੀ ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਰਫੀਕ ਇਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿਹਦਾ ਸੀਨਾ ਕਿੱਡਾ ਚੌੜਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ 2 ਇੰਚ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਚੌੜਾ ਸੀਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਰ ਤੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸੀਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੱਖਣ ਖਾਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿਹਦੇ ਡੋਲੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕਦੇ ਚੌਂਸਾ ਚੂਸਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਚੂਸੇ ਥੋੜੇ ਕੰਮ ਲਗਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਆਦਾਬ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਓ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ और अपनी कोई मैं इतनी परेशान हूं ਕੀ ਗੱਲ 9 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਤੇ ਖਾ ਗਿਆ अल्लाह ना करे की बात है ना करे बस एक तुम्हारे से पूछ के आया अच्छा। कल का इतनी बैठा शराब पी जाता है ते मुजरा भी शराब पी जाता है ते मुजरा भी जाता है ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ
देखो ये गला ना करो जमादार से भी तमाश भी ना ध्यान का टाइम हो गया मुझे का टाइम हो गया जमादार ते 2 दिन हो गया छुट्टी ते गया जी हाय अल्लाह जमादार छुट्टी से गया तो सफाई कौन करेगा बल्कि तो भाई लाता दुकानदारी पड़ी पड़ी थोड़ी लगती तेरी अपने की गल नहीं हो रही ओदी गल है जमादार की गल हो रही है ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਪਈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਦਿਆ की चाहोगे ਉਹ ਡੇਰੇ ਜਮਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ हाय अल्लाह मक्खन कितना चंगा सारे दवाई को ना ख्याल रखते बुलाओ जमादार को ਆਪਣਾ ਛੁੱਟੇ ਚੂ ਕਰੇ ਗਾਲੇ ਕੰਮ ਫਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪ ਦੀ 12 ਗਲੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਰਕਸ ਵੇਖਿਆ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਅਨਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਅੱਖ ਪਸਰਾ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ कौन है वो खुशकिस्मत ਗੋਰ पागल हो गए मलिक साहब मैं कोई खानदानी तवाइफ नहीं एक और गल कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ ਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉਹ ਅਮੀਰ ਜ਼ਾਦਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾ ਕੇ ਆਪ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕੇ ਸੇ ਸੱਚ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹਵਸ ਦੀ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤੜਪ ਰਹੇ ਹੋ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ मैं हीरा मंडी विकन वाला एक हीरा मां मेरी एक रात की कीमत अदा कर दो तुम मेरे खुलवत खाने मेरे एक रात दे मेहमान बन जाओ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਖਲੂਵਤ ਖਾਨੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮਿਆਰ ਤੇਰਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕੋਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੋਰੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਸਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ ਸੁਬਹ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਗੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਵਜੂਦ ਤੱਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੋਰੀ ਤੇ इश्क का सजदा सिर्फ सच्चा आशिक ही कर सकता है सच्चा आशिक वक्त ने सरे बाजार नीलाम करके कोठे पे बिठा दिया सुभान अल्लाह इज्जत खोले असमत खोले एतबार की खोले आज वक्त ने एक बारी फिर साडी बोली ला बस एनआई के पहली वाली बोली लाना एक दलाल ते दूसरी वाली बोली लाना एक जागीरदार दलाल ने कीमत वसूल करके कोठे पे बिठा दिया ते जागीरदार कीमत चुका के इज्जत की चार दीवारी बिठाना चाहता ठीक है भाई साहब मैं तुम्हारी इज्जत की चार दीवारी कैद होने के तैयार और सोच लो तुम्हारा इज्जतदार खानदान इस तवाइफ के वजूद नु कभी कबूल नहीं करेगा कभी कबूल नहीं करेगा सुभान अल्लाह मेरे खानदान में हर शख्स को तेरा वजूद कबूल करना पड़ेगा गोरी तेरा कबूल नहीं करेगा तो हर रिश्ता मेरी जिंदगी की लज्जत तो महरूम हो जाएगा चल गोरी चल गोरी मैं तेरे समीर साले ना रखो नहीं हो जान देना कौन रोकेगा मैंने मैं हीरा मंडी तक तुम नहीं इसलिए कोई भी दलाल मैंने रोक नहीं सकता मैं रोकांगा मक्खन दलाल रोकेगा तेनू तू चंगी तरह जाननी है हीरा मंडी दे असूल हीरा मंडी च सिर्फ वफादारी दे असूल चलदे ने ते हीरा मंडी दे असूलां दे मुताबिक जेड़ा मर्द वफादारी नू पसंद आ गया दूजिया तवाइफा ओदे लख चुक के नहीं देख सकदी ते तू ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਦਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਆਏ ਮੈਂ ਕभी भी नहीं हो गया कभी भी नहीं हो गया देख देख लो वफा भाई देख कल दी कुड़ी जरा सब कुछ अकल सीखी है हसना गाना नचना गाना पीना सब कुछ इस बाजार हीरा मंडी से सीख के तैयार आज अपनी मर्जियां आप कर रही है ऐस अमीर जादे नाल अपना घर बसाना चाहती है वाह भाई वाह मजा आ गया इस कुड़ी का तेनू किसी ने दसिया नहीं कि ना ते मेरा वफा है पर लोकी मैनू बेवफा कहंदे ने कान कोल दे सुंडा चलो रानी तेरे साथी ते वफा भाई का दिल आ गया ते तेरा मर्द वफा भाई को पसंद आ जाए और बाकी दियां तवाइफां ते हराम होंदा है हराम तेरा आशिक आज साडे नाल
हीरा मंडी के असूल तोड़ के इथों चली गई ते हीरा मंडी जिला इंडिया तमाशा ने अपनी मर्जी करनी हो साडा किसे ने नहीं मानना बाजार सारा खाली हो जाए लेकिन तू आज इंतकाम की एक नवी मिसाल कायम कर तू इस आशिक ਨੂੰ इस बाजार कत्ल करवा दे या तो कत्ल भी हीरा मंडी की सैकड़ों दास्ताना तरह आपे ही खत्म हो जाएगा ऐसा कत्ल करवा दे अच्छो बदमाश तेरे को एक कत्ल करवाना है एक कत्ल होना है सामने ऐसा भी दांत लोगे ओए ला कसूर की है इश्क करने वाले कसूर नहीं पूछते सिर्फ हुक्म मानते हैं तेरा हुक्म है ते मार दने Demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी तरफ से अपने प्रोड्यूसर सैयद मोहम्मद यूसुफ साहब की तरफ से और अपनी तमाम ड्रामा टीम की तरफ से तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी एक कॉल पर हमेशा की तरह हमारे पास नाज थिएटर में तशरीफ़ लाए। बड़ा तकलीफ़ दे वक्त है, मैं समझता हूँ मीडिया के लिए भी ये बड़ा तकलीफ़ दे वक्त है और आर्टिस्टों के लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे वक्त है। और ये इम्तिहान जो है ये आर्टिस्टों पर अक्सर औकात आता रहता है कि हम इस वक्त मीडिया के साथ नाज थिएटर में अपने ड्रामा टकसाली गेट की कामयाबी की खुशी में यहाँ मौजूद है और छोटी सी प्रेस ब्रीफिंग के लिए। मगर इस दौरान हमारे सीनियर मोस्ट अदाकार, राइटर, डायरेक्टर, फिल्म थिएटर के एक्टर सरदार कमाल साहब इंतकाल कर गए हैं। अल्लाह पाक उनकी मंजिलें आसान फरमाए और उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमारे बड़े भाई भी थे और
हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री का बहुत बड़ा असासा थे और उनके जाने का नुकसान जो है वो आने वाली सदियों तक पूरा नहीं हो सकता। ड्रामा टकसाली गेट के हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि ड्रामा ज़ेरे नुमाइश है और ड्रामा पिछले काफ़ी सालों बाद ऐसा ड्रामा स्टेज हुआ है जिसको पब्लिक जौक दर जौक देख रही है और पब्लिक रिपीट हो रही है। तो इससे ये साबित हुआ कि आज के दौर में जबकि स्टेज ड्रामे पर बड़े सवाल उठते हैं, बड़ी उंगलियां उठती हैं, इस दौर में भी अगर अच्छा स्टेज ड्रामा किया जाए, अच्छी कहानी पेश की जाए, मजबूत स्टोरी पेश की जाए तो पब्लिक ड्रामा देखने आती है। और इसकी एक बेहतरीन मिसाल टकसाली गेट है। टकसाली गेट के हवाले से मीडिया ने हमारे साथ थिएटर ड्रामा की तरक्की और तरक्की के लिए जितना पॉजिटिव किरदार अदा किया है उसके लिए हम मीडिया के ममनून और मशकूर हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी अच्छा काम करने वाले को मीडिया ज़रूर प्रमोट करेगा और इंशाल्लाह ताला इतनी सारी पब्लिक की तरफ से इज़्ज़त अफजाई के बाद और ड्रामे की कामयाबी के बाद ये हमारी टीम का जो शौक़ था अच्छा ड्रामा पेश करने का वो जुनून में तब्दील हो गया है और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इस जुनून को बरकरार रखा जाएगा और इससे भी ज़्यादा बेहतर ड्रामे, खूबसूरत ड्रामे, कामयाब ड्रामे सैयद प्रोडक्शन की टीम इंशाल्लाह पेश करेगी। आज मीडिया को हमारा ड्रामा देखने की दावत है। अभी कुछ देर बाद ड्रामा का आगाज़ होगा और तमाम मीडिया के दोस्त जो है वो हमारा ड्रामा देखेंगे और हमें हमारी कोताहियों के बारे में ज़रूर आगाह करेंगे और अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें अप्रिशिएट भी ज़रूर करेंगे और हम इंशाल्लाह ताला अपनी पब्लिक से, ड्रामा देखने वालों से और मीडिया से वादा करते हैं कि ये जो तासुर है कि ड्रामा मर चुका है, हम इंशाल्लाह ताला ड्रामा को अपनी अनथक काविशों से ज़िंदा करके दिखाएंगे। मेरे ड्रामा के प्रोड्यूसर ने भी ये अहद किया है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट तगड़े और खूबसूरत ड्रामों को स्टेज किया जाएगा और ये ड्रामा टकसाली गेट इसको लॉन्ग टर्म के लिए पेश किया जाएगा। नेक्स्ट वीक में भी यही ड्रामा टकसाली गेट इंशाल्लाह ताला जारी हो सकता है। हमारी खूबसूरत अदाकारा आफरीन परी साहिबा की खूबसूरत परफॉर्मेंस और खूबसूरत रोल, फिरोज़ा अली की एक बड़ी तगड़ी रक्स आइटम और फिरोज़ा अली का बड़ा ही मजबूत खूबसूरत रोल, कैरेक्टर, तारा खान हमारी खूबसूरत आर्टिस्ट हैं, फराह खान और रीना मुल्तानी ने भी अपने अपने किरदारों के साथ इंसाफ किया है जिसे आप आज इंशाल्लाह ताला बैठकर लाइव देखें। और हमारे पास मेल कास्ट में आज के दौर के वो एनर्जेटिक आर्टिस्ट हैं जो किसी भी मुश्किल तरीन सब्जेक्ट को खुद पर तारी करके थिएटर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करने की अहलियत रखते हैं। एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और आप इन परी साहबा से गुजारिश है कि वो कुछ कहना चाहें। सबसे पहले ये कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इस वक्त बहुत मुश्किल की घड़ी है। एक इत्तला मिली है हमें सरदार कमाल साहब के बारे में कि वफात पा गए, तो सबसे ज़्यादा दुख इस चीज़ का है। लेकिन इस वक्त हम जिसलिए इकट्ठे हुए हैं वो है हमारा ड्रामा टकसाली गेट। इसके लिए मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी पूरी टीम को और सैयद मोहम्मद यूसुफ साहब को और डॉक्टर साहब को। ये ड्रामा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, पब्लिक ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बड़ा अच्छा फीडबैक दिया और इतने खूबसूरत फीडबैक के बाद ये हमारा ड्रामा जो है वो नेक्स्ट वीक में जा रहा है। इसकी भी बहुत खुशी है क्योंकि जब अच्छा काम होता है तो उसकी बेहद खुशी होती है, अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मज़ीद दिल करता है और अच्छा काम करें।
तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह मौजूद हैं जो कि बहुत अच्छा काम करवाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हम मज़ीद भी इसी तरह बहुत अच्छा काम करेंगे एक टीम वर्क के साथ। फिरोजा अली कुछ बस वहीं रख दें, इससे आगे नहीं जाएगा। जी सबसे पहले सबको मेरा सलाम, और मैं बेहद खुश हूँ कि मैं टकसाली गेट का हिस्सा हूँ, इतने खूबसूरत ड्रामे का हिस्सा, इतना खूबसूरत किरदार, और मैं डॉक्टर साहब की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया, इतना अच्छा कैरेक्टर दिया, और हम सब ने बहुत मेहनत की। आफरीन जी हैं, ज़ारा है, फ़रा है, रीना है, सब ने अपने किरदार के साथ बखूबी इंसाफ किया। हमने अपना 100% दिया और पब्लिक ने हमें 1000% रिस्पॉन्स दिया। इतना अच्छा रिस्पॉन्स, इतनी अच्छी फीडबैक, तो बेहद खुशी हुई कि इतना पब्लिक ने हमें प्यार दिया हमारी सोच से बढ़कर। तो सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने इतना आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स दिया। थैंक यू। सारा खान बिल्कुल बहुत अच्छा प्ले जा रहा है हमारा माशाल्लाह, और अल्लाह पाक हमें ये तौफीक दें कि हम इससे भी अच्छा काम करें इंशाल्लाह। बहुत हमारी खूबसूरत अदाकारा फरा खान। जी सबसे पहले जी सबको अस्सलाम वालेकुम। और ये जो टकसाली गेट ड्रामा है ये बहुत ही अच्छा सुपर हिट हमारा ड्रामा गया है। इसके पीछे डॉक्टर साहब की और यूसुफ साहब की मेहनत है, और साथ एक्टरों की भी मेहनत है। हमने बड़े अच्छे रोल किए हैं और हम बहुत खुश हैं। पब्लिक ने भी हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले थोड़ा सा ऊंचा माइक अफसोस की घड़ी है कि आज सरकार सीट चेंज की खुशी में इकट्ठे हुए हैं, तो डॉक्टर साहब की अनथक मेहनत के बाद हमने एक और खूबसूरत ड्रामा आवाम के लिए पेश किया, और इंशाल्लाह ताला ये जितना हो सकेगा हम इसको चलाएंगे। बहुत खूबसूरत स्क्रिप्ट के साथ बहुत खूबसूरत ड्रामा है। सब आर्टिस्टों ने इतनी मेहनत की है कि पब्लिक ने बहुत पसंद किया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम ऐसे ड्रामे इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इस वक्त टकसाली गेट के एक तकरीब में बैठे हुए हैं, और यहाँ पे हम लोग आपका थैंक्सफुल करते हैं कि आप लोग यहाँ पे आते हैं, और पब्लिक को आप लोगों की वजह से हम लोगों का वो पता चल रहा था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन सा ड्रामा कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। सैयद प्रोडक्शन में हम लोग जब से आए हम लोगों ने कुछ ना कुछ अच्छा करने का किया, और अल्लाह ने हमसे करवा दिया। डॉक्टर अजमल मलिक साहब उसके पीछे होते हैं, फिर एक प्रोडक्शन अच्छी है, और हमें बहुत मज़ा आ रहा है इस प्रोडक्शन में काम करने के लिए। ये जो भाटी गेट है ये एक मिसाली ड्रामा है। टकसाली गेट है भाई। टकसाली गेट, ये जो टकसाली गेट ड्रामा है ये बहुत मिसाली ड्रामा है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये कि मैं मीडिया से ये बात करना चाहता हूँ कि जहाँ पे आप लोग ड्रामा प्रमोट कर रहे होते हैं, अगर ड्रामा हो रहा है वहाँ पे मेल भी उसी तरह पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं जिस तरह फीमेल्स कर रही होती है। आप लोगों के चैनल्स में जब ओनली फीमेल्स के नाम चल रहे होते हैं तो उसमें बड़ा एक प्रॉब्लम आता है कि लोग कहते हैं फिर गाने ही हो गए, मेल्स भी वही हक रखते हैं। मेल्स को भी आप शूट करें, मेल्स को भी लगाएं सबके साथ। ये मैं अपने आर्टिस्टों के नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, दूसरे थिएटर्स में भी ऐसा होता है। उनको भी लड़कों को भी आप ऑब्लाइज करें, ये सारा फिर ड्रामे का मजा आएगा। सुपरस्टार हामिद रंगीला, चलें जी। सब तो पहले अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों ਨੂੰ। जिस तरह सारे दोस्तों ने दसिया कि सरकार ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਟੇਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੀਟੇਕ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਟਾਇਆ ਹੈ ਡਰਾਮਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਫਨਕਾਰ ਹੈਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਗੇਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਰਾਮਾ, ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਡਰਾਮਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੇ ਹੈਗਾ ਔਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਡਰਾਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਔਰ मीडिया बहुत अच्छे लोग ने, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो इस तरह ही साडा प्यार मोहब्बत जारी है। कवरेज लेने आए हैं बड़े अपने कीमती टाइम निकाल के, तो जितने भी चैनल्स आए हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारी कोशिश ये रही है हमेशा कि इस दौर में जो काम जा रहा है हमारा लाइव काम बहुत मुश्किल काम है, और इस दौर में तो बहुत मुश्किल काम है। तब थे कि ऑडियंस बड़ी मासूम होती थी, हाल से मुकाबला करना पड़ता है, इसके बावजूद वो काम हमें दिखाना पड़ता है कि जो पब्लिक इस वक्त नहीं सुनना चाहती क्योंकि वो और बातों पे लगी हुई है।
तो इस मुश्किल दौर में जब डॉक्टर साहब हमें रिहर्सल करवा रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि यार ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जब डॉक्टर साहब की तरफ से देखते हैं कि उनकी फोर्स टूट नहीं रही इस काम के, मतलब ये ऐसा काम हमसे करवा रहे हैं कि जो हमारी औकात तो नहीं थी, लेकिन इतना अच्छा काम करवा रहे हैं डॉक्टर साहब। अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी रखे। और सैयद प्रोडक्शन जो है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, हमेशा अच्छा ड्रामा करते हैं, अच्छा ड्रामा करेंगे और हमेशा अच्छा ड्रामा करते रहेंगे। ये सैयद प्रोडक्शन की खास इंट्रोडक्शन है। बहुत जी अजीम मिकी की तरफ जी रीना मुल्तानी जी बेटे की तबीयत खराब हुई है। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मीडिया को बहुत शुक्रगुजार करूंगी कि वो लोग आए, उन लोगों ने हमारा ड्रामा अब ठीक है जी दोबारा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार करती हूँ और माशाल्लाह से हमारा ये ड्रामा बहुत सुपर डुपर हिट जा रहा है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर अजमल साहब की, जो इन्होंने हमें मुझे ख़ास तौर पर ये रोल दिया करने के लिए और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर काम करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आप सबको भी ये ड्रामा बहुत पसंद आइएगा। आप भी आइएगा, अपने दोस्तों को भी लेकर आइए, ये ड्रामा लाजमी देखिए, हमारा फैमिली ड्रामा। थैंक यू। जानते हैं, कुछ नए लोग भी हैं, मेरा तकरीबन काफ़ी सालों से इन सबसे व्यवस्था है, बहुत प्यार है, तो मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत से ड्रामे डॉक्टर साहब ने इस प्लेटफार्म पे दिए हैं सही प्रोडक्शन से। तो हमारी आदत है कि हम आर्टिस्टों से मोहब्बत प्यार रखते हैं, एक भाईचारा फैमिली होता है। तो सारी गेट हमने बहुत मेहनत से तैयार किया है, उन्होंने आर्टिस्टों ने बड़ी मेहनत की है, डॉक्टर साहब ने बड़ी मेहनत की है। तो इंशाल्लाह वो आप देख रहे हैं, हर जगह टकसाली गेट का ही नाम लिया जा रहा है और लोग घर जो लोग आ रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह आगे भी एक प्रोजेक्ट आ रहा हूँ, मैंने इनसे डिस्कस किया है, वो भी इससे बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक और आप सब दोस्त जानते हैं कि मेरा ड्रामा टकसाली गेट इस वक्त तमाम साबका ड्रामों के रिकॉर्ड तोड़ चुका है और नाज थिएटर में ज़ेर नुमाइश है। ड्रामे की कामयाबी की वजह से, सुपर हिट कामयाबी की वजह से ड्रामा अब दूसरे हफ्ते में दाखिल हो गया है, यानी 2 अगस्त से भी यही ड्रामा जारी और सारी रहेगा। तो पाकिस्तान भर से जो तमाम दोस्त लाहौर तशरीफ़ लाते हैं मुख्तलिफ़ कामों के लिए, वो आएँ, वो आकर ये ड्रामा देखें टकसाली गेट, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हों को खूबसूरत ड्रामे के साथ एंजॉय कर सकें। और लाहौर समेत दीगर शहरों से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम व्यूअर्स और पब्लिक से मेरी गुजारिश है कि एक सुपरहिट और ख़ूबसूरत शाहकार ज़ेर नुमाइश है टकसाली गेट, जिसे दुनिया भर से लोग आकर देख रहे हैं। आइए और इस ड्रामे को एंजॉय कीजिए। जी हाँ, नाज थिएटर में जारी और सारी है टकसाली गेट।